Hello and welcome. This is the fifth part of the cartoon explanation series of the second book, that is Politics in India since Independence. In now this would be the last part of this series, and in this part, I am going to explain the cartoons and a few newspaper clippings that are there in the last chapter of your syllabus, that is recent developments in Indian politics. Okay, now this cartoon is on page 176, and this cartoon has come in the board examination, has been asked in the board examination many times, many times. Okay, so now what is shown in the cartoons? Let's see. This is first identify the personalities. This is VP Singh, who became the Prime Minister of India in 1989, Vishwanath Pratap Singh, and he was the leader of the National Front, the coalition that was formed in 1989. Okay, so he was the leader of that coalition and he became the Prime Minister. Now, since the National Front also did not have that much of seats in the parliament, this coalition was supported by these two, who are, this is Lal Krishna Advani, who was the leader of the BJP, Bharatiya Janata Party, and this is Jyoti Basu, who was the leader of CPIM, and at that time he was the chief minister of West Bengal as well. Okay, तो ये जो this represent a very important phenomenon of the coalition era, and that is that in this coalition era, ideologies were not very important. So if you see the ideologies of these two parties, BJP and CPI. So BJP is a rightist party, and and CPIM, all these are leftist parties. Okay, so both the rightist and the leftist coming on one platform to support the government of VP Singh in 1989. And why they agreed to do so? Because they wanted to prevent Congress from coming into power. Okay, so here the interests were more important than that of the ideologies. तो ये जो स्टेज है ये भी इन्होंने बड़े ब्यूटीफुली दिखाया है. दिस इज दे आर शोइंग द पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये संसद का बनाया है यहाँ पर, एंड इन दैट पार्लियामेंट VP Singh is there, but the strings he is shown here as a puppet because since these two parties are giving outside support. अब ये देखिए, ये बाहर इनको रखा है, संसद के अंदर नहीं रखा है. इसका मतलब कि ये बाहर ही आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे. आउटसाइड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, but they will be supporting the government from outside. Okay, so the strings are in the hands of these two parties. Whenever they want to pull the government, they can pull the government. ठीक है, तो वो इस तरह से इसको इसलिए दिखाया गया है. So identified the puppet in the cartoon. He is VP Singh and he became the Prime Minister in 89. Identify the two leaders. Now that also you know. And which phenomena, what is the stage shown as? It is shown as Parliament. Which phenomena of Indian politics is a cartoon comment upon? It comments on the era of coalition, an important feature of the era of coalition when the ideologies were not so important. Okay, उसके बाद फिर ये कार्टून है. दिस इज अ कंपैरिजन of two years. One is 1971 and the other is 1999. So in 1971, Indira Gandhi won the elections, and she formed the government. And in the elections, she had won almost more than 2/3 of the seats. So here Indira Gandhi is shown standing tall, whereas the opposition is trying to डिसमेंटल द गवर्नमेंट. मतलब ऑपोजिशन ये कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट को हराया जाए, लेकिन वो इतनी टॉल है कि ऑपोजिशन वहां तक पहुंच नहीं सकता. इसको कंपेयर किया है 1999 से. 1999 में NDA का फॉर्मेशन हुआ था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और अटल बिहारी वाजपेयी बने थे प्राइम मिनिस्टर. बट दैट अलायंस इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ पार्टीज. तो अब उसी को कंपेयर किया है कि ये अलायंस उतना बड़ा, इतनी सारी पार्टीज मिलकर उतनी सीट भी नहीं बना पाई जितना इंदिरा गांधी को मिल गई थी. और ये जो यहाँ पे दिखाया है, ये सोनिया गांधी को दिखाया है कि वो कोशिश कर रही हैं कि इस अलायंस को गिराया जाए. ओके, सो
Now you can answer these questions easily, comfortably, that identify the coalition shown in the second cartoon, that is NDA, identify any two leaders in the second cartoon, the parties, तो ये आप बता सकते हैं बीजेपी और सोनिया गांधी कांग्रेस. Mention any 2 points of comparison I gave you of the entire cartoon, so now you can answer this cartoon as well. Now again, this is a picture, newspaper clipping in the chapter. This is on page 185. और ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, सेंटर सैक्स कल्याण गवर्नमेंट. सो बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड ऑन 6 December 1992. Okay, so 6 December 1992 was the demolition of Babri Masjid, and as a result of which the central government sacked the Kalyan Singh government at that time, which was ruling at that time. And the government was sacked because the government could not protect the Babri Masjid. The Kalyan Singh government had given assurance in the courts that all efforts will be taken to protect and there will be no damage to the Babri Masjid structure, since this issue was pending in the court. तो कोर्ट में ये इशू था, इसलिए इस स्ट्रक्चर को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कोर्ट के सामने बोला था. पर वो इस घटना को रोक नहीं पाए और इसके लिए ही कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को इसके बाद डिसमिस कर दिया गया था. उस समय जो सेंटर में गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसके प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव. ओके, सो व्हेन एंड वेयर डिड दिस इवेंट टेक प्लेस? इट टुक प्लेस इन अयोध्या on 6 December 1992. Why the newspaper heading mentions Center Sachs Kalyan government? That I told you right now the answer. And explain the circumstances leading to this event. तो circumstances कुछ इस तरह के थे कि बाबरी मस्जिद का केस जो था, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, that was in the court at that time. But mobilization has started on the issue of the construction of Ram temple at the disputed site. Now, for that, a lot of mobilization had already started, and as a part of this mobilization program, a car seva was organized in Ayodhya on 6th December 1992. तो कार सेवा का आयोजन था. अब कार सेवा क्या होती है? कार सेवा का मतलब ये हुआ कि वॉलंटरी सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल. तो इसमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में पीपल स्टार्टेड कमिंग टू अयोध्या. And on 6th December 1992, the situation went out of control. वहाँ पे कुछ जो भीड़ थी वहाँ पे जो इकट्ठी हुई थी वो उत्तेजित हो गई थी और उसमें से कुछ लोगों ने इस तरह से चढ़कर गुंबद पे और उसको तोड़ना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी ही वो तीनों गुंबद तोड़ के गिरा दिए गए. तो ये घटना हुई थी, इस तरह से हुई थी. ये आप अब आंसर कर सकते हैं. बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये था. और उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़पेपर क्लिपिंग है ऑन पेज 186. ओके, so now in this newspaper, first you can see this leader and identify this leader also. He is Atal Bihari Vajpayee, the leader of BJP at that time. और बाद में ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी किए बने. ठीक है, इसमें वायलेंट रिएक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आप देख सकते हैं. अयोध्या BJP's worst miscalculation that Vajpayee has said at that time. To identify the leader Atal Bihari Vajpayee, which event is reported in this newspaper clippings, that is the demolition of the Babri Masjid at Ayodhya on 6 December 1992 and its after effects. What were the after effects of this event? After this event, large scale Hindu-Muslim riots broke out in various parts of the country and not only country, outside the country as well. तो विश्व के कई भागों में जहाँ भी हिंदू मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए थे और कल्याण सिंह गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था. एंड इन दीज हिंदू मुस्लिम राइट्स मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. ओके, सो दिस वाज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस इवेंट. उसके बाद 187 पेज पे अगेन यू विल सी दिस न्यूज़पेपर क्लिपिंग, Gujarat is burning. Now this is the reporting of a very unfortunate event that happened in Gujarat in 2002. तो February March 2002 में ये गुजरात में हुआ था.
which event is reported in this newspaper clipping? That is the Godhra incident, in which 3 bogies of Sabarmati Express were put on fire, and in these bogies were the car sevaks who were returning from Ayodhya. तो अयोध्या से कुछ कार सेवक इन बोगी इस ट्रेन से आ रहे थे और गोधरा स्टेशन पे गुजरात में इसकी कुछ बोगीज में आग लगा दी गई थी, जिससे कि बहुत से लोग उसमें जल के मर गए थे। ठीक है। अब इस इंसिडेंट के बाद तुरंत ही लोगों को ऐसा लगा कि इस घटना के पीछे मुस्लिम्स का हाथ है और हिंदू मुस्लिम्स राइट शुरू हो गए गुजरात में। तो ये था पूरा इंसिडेंट जिसमें कि कई लोगों की जानें गईं। सो विच इवेंट इज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर क्लिपिंग? दिस इज द गोधरा राइट्स दैट इज रिपोर्टेड. What was the immediate provocation that I told you right now, and what did the National Human Rights Commission criticize? Why the National Human Rights Commission criticized the Gujarat government in this case? इस केस में जो NHRC है हमारा, उसने गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, विच एट दैट टाइम वॉज बीइंग लेड बाय नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे उस समय गुजरात के, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए दैट प्रॉपर एक्शंस वर नॉट टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द वायलेंस इन दिस केस, टू पनिश द परपेट्रेटर्स ऑफ द वायलेंस, और जो विक्टिम्स थे उनको राहत देने के लिए भी प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए गए। ये ऑब्जर्वेशंस थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो ये आपके बुक में है पेज 187 पे। फिर एक कार्टून है, और ये लास्ट कार्टून आपके बुक का है, दैट इज ऑन 192। नाउ इन दिस कार्टून यू कैन सी मैनी प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिसमें जैसे वीपी सिंह 1990 will VP Singh survive, फिर नवंबर 1990 will चंद्रशेखर survive, फिर जून 1991 will PV नरसिम्हा राव survive, जून 1996 will HD देवगौड़ा survive, then अप्रैल 1997 इंद्र कुमार गुजराल हैं, ये will गुजराल survive, एंड मार्च 1998 will वाजपेयी survive। तो ये सारी गवर्नमेंट्स इसके बीच में बनी थी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। The question was, see, this cartoon is commenting on a very important feature once again of the coalition era, and that is that the governments of that time were very short-lived and the politics were very uncertain. तो जो गवर्नमेंट्स बनती थी पता नहीं होता था कि वो कितने दिन चलेंगी, और क्यों नहीं पता होता था? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज मिलके उस गवर्नमेंट को बनाती थी। तो कौन सी पार्टी कब अपना सपोर्ट वापस ले लेगी, किस इशू पे ये जो कोलिशन बना है ये टूट जाएगा, किसी को पता नहीं होता था, और उसी की वजह से जो गवर्नमेंट्स थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड हुआ करती थी। सो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड व्हेन दीस पीपल बिकेम प्राइम मिनिस्टर, देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क दैट हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू सर्व द कंट्री, so how long they are going to remain in power, how long this government will survive. So this was the question which is being depicted in this picture. और लास्ट में यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इंडिया, और उसके ऊपर लिखा हुआ है विल इंडिया सर्वाइव। ओके, ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो गवर्नमेंट्स जो इतनी शॉर्ट लिव्ड थी, अब इसके बाद इतनी शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट्स में कंट्री सर्वाइव कैसे करेगा? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अगर सरकार मजबूत नहीं है, अगर सरकार खुद ही श्योर नहीं है कि वो कब तक चलेगी, तो जो पूरा टाइम जो गवर्नमेंट्स का था उस वक्त वो इन जोड़ तोड़ में लगा रहता था, और देश की जो इंटरेस्ट की बातें थी, देश हित की जो बातें थी, वो शायद उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था जितना देना चाहिए था। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन विल इंडिया सर्वाइव, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री नीड्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, a strong country needs a stable government। तो इतनी सारी इंस्टेबिलिटी के बीच में इंडिया स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो उसी को इस कार्टून में बताया है। सो विद दिस द एंटायर कार्टून सीरीज इज ओवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कार्टून्स, और अगर कुछ कार्टून्स छूट गए हैं
तो ये मानकर चलिए कि वो मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है और कभी पूछे भी नहीं गए हैं। बाकी या तो फिर इसलिए छोड़े होंगे क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन उस कार्टून के नीचे ही लिखा हुआ है और बहुत क्लियर है। ओके, तो इसलिए शायद वो चीज़ें मैंने कवर अप नहीं की। जितनी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो पूरा मैं इस कार्टून सीरीज में कवर अप कर चुकी हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग, दैट आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चंस ये 1 मार्क या 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते चलेंगे तो आपके 1 मार्कर्स भी प्रिपेयर होते हैं। So that when I am asking you that two results of 1980 elections, okay, or write the term of any 2 government shown here, तो इन लोगों की जो पर्सनालिटीज इस कार्टून में दिखाई गई हैं, आपके बुक में एक लास्ट चैप्टर में ही एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है गवर्नमेंट्स का उस समय की, जो मैंने अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो इन गवर्नमेंट्स का जो टाइम पीरियड था वो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते चलेंगे तो आपके 1 मार्कर्स भी तैयार होते चलेंगे। अब इसके बाद जो चीज़ बची है आपको देने के लिए वो है मैप क्लूज, कि मैप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैप क्लूज और 1 मार्कर्स। So both of these things I'll be doing together, because when you prepare map clues, you prepare a lot of 1 markers as well. Map clues are nothing but 1 markers which you have to show on the map, which you have to identify on the map actually. ठीक है, तो वो मैं अगला शुरू कर दूंगी। I need some time to prepare for that, but I'll definitely do that. That is my promise. So thank you so much for watching all this. I hope these are helping you. Thank you. Bye bye.